So still sir is back on mic. I would like to welcome, there are lots of members who are not a part of this community, because this time I've invited even people who have been associated with children with learning or delayed learning. So I have many of them who joined for our session today, and like Reena Ramesh, quite a few who are not a member of our community. And I would invite you to become the member of a community soon, so that you can attend many such sessions, learn from the online system, and remain connected with us by being a part of this active community. Thank you, ma'am. You're welcome. Yeah. Over to Dr. Prashant. I think now I'm audible. Yes, sir. I think unlike we teachers, you're a very soft-spoken person. No. It's just an online thing. Otherwise, everything is different. Thank you so much. I again request one and all to switch on their videos so that it becomes easy to read your expression. And then I can continue talking or I can end my talk depending on your facial expressions. See, the first thing when I said know your child, the importance is of a communication. And communication is not only a verbal communication, it is a non-verbal also. And in non-verbal, the most important is your facial expressions. So by your facial expressions, we can know whether you are enjoying the session or not. The same is true while you are dealing with your child. When you are dealing with your child, at that time, it may happen that whatever you want to teach your children, they may not follow what you are saying. But the most important thing is they will be doing the things which you are doing. So that is the most important thing. Yeah, sorry for the some technical glitches. So now coming to the today's topic, the know your child. See, the first thing is when I took this topic, I had a conversation with few of my friends, and they say we know everything about our children. What is new about that? But then I remember the theory of a father of a parenting talks. He said that before becoming a parent, I had a 6 theories how to control children. And today I'm having a 6 children. सर मेरा एक हेडफोन यहाँ फेंक दो राइट ईयर वाला. And Sorry, sir. no, and no theories work. So this is how the parenting is. The first and foremost important thing which I want to tell to all parents is there is nothing like a perfect parent. All are learning parents. And I learned so many things from my child. अभी जब ये टेक्निकल ग्लिच आया ना कि आवाज बराबर नहीं है, आई सेड टू माय सन, बेटा होमवर्क करा था, अपना ईयरफोन दे, मुझे लेक्चर लेना है. देन ही गेव मी द ईयरफोन, बट उसने बोला आपके दूसरे कबर्ड में पड़े हुए हैं, वहां से ले लो, मेरे क्यों मांग रहे हो. मैंने कहा मेरा लेक्चर चालू है. देन ही जस्ट गेव मी. सो दिस इज व्हाट इज योर पेरेंटिंग स्टाइल. नाउ यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं एक सिंपल सी चीज आप सबसे पूछूंगा. हाउ मेनी ऑफ यू नो द गुड क्वालिटीज ऑफ योर चाइल्ड? जस्ट यस 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 चैट बॉक्स में फटाफट लिखो तो मुझे पता चलेगा कि कितनों को पता है. फाइन. प्रिया said, Bala Saraswati ma'am said, Arunima said, yes, okay. Now fine. When I'm having more than 5 answers, I'm satisfied. Now, this is the link for all of you. I'm just sharing my screen for all of you. I just pasted one link into our chat box. Okay. When you click onto the link, it will open this window. What is the one thing? Sorry. Just a minute. I've already posted a link, but then I'll just again share the slides.
type anything at present. Yeah, somebody has already started typing. So this is what I wanted to show. Yeah, write qualities, strength, or positive things of your child. I got only one answer, pardon. He pardons easily. I want everybody to reply that what is the one good quality or a strength or positive things which you think your child is having. It can be more than one also, but then minimum one. Curiosity, very good. Sir, do we type here, doctor, or in the menti.com? Menti.com. Yeah, type in menti.com only. The reason I will tell you. Okay, the empathy. Yeah, the motivation, friendly, positive, soft spoken. You can type more than one also, whatever is the quality. She is helping and caring and hardworking, patience, understanding, curiosity, sincere, friendly, creativity, loving, very positive. Fine. I got many answers and the answers are still coming. You can just see at the screen how beautiful it looks, how colorful it looks. So this is a one thing which all parents must do, and that is what is you must encourage yourself to write down the positive things about your child and make this type of tree in your house, stick it in their bedroom's wall. फायदा क्या होगा इससे? जब आप अपने बच्चे को बोलेंगे यू आर वेरी एनर्जेटिक, तो उसको बहुत अच्छा फील होगा, अंदर से फील अच्छा होगा. This is something called as a SWOT analysis, and the first part of SWOT analysis is strength identification. When your child finds that my parents thinks I am empathetic, my parents thinks I am patient, my parents think I am sincere, then the qualities of the same thing will improve. So this is the first thing which I want to tell to all parents. आप अपने बच्चों की स्ट्रेंथ, जो भी स्ट्रेंथ आपको जब भी अच्छी लगी, उस स्ट्रेंथ को एक पीस ऑफ पेपर पे लिख के उसके रूम में चिपका दो. See what happens is we say to our children that you are good at these things, but then they forget it. आप देखोगे अगर वो जब भी नर्सरी में जाते हैं, वो ABCD पढ़ते हैं, वो रिपीटेडली एक की एक चीज करते हैं. तो अगर उनको ये अपनी क्वालिटी दिखती रहती है, तो उससे फायदा ये होगा कि उनका एक मोटिवेशन बढ़ेगा. एंड सेकेंड, say for example you have written that my child is sincere or hardworking. अब वही बच्चा जब होमवर्क नहीं कर रहा, तब आप उसको बोलोगे बेटा योर क्वालिटी इज हार्ड वर्क, योर क्वालिटी इज सिंसियरिटी, ये है, तब उसको लगेगा कि यार ये तो मेरी क्वालिटी है, तो मुझे मेरी क्वालिटी जो है उसको फॉलो करना है, इसलिए वो वापस करेगा. सो ये फर्स्ट थिंग, ऑल पेरेंट्स मस्ट राइट डाउन द स्ट्रेंथ्स ऑफ देयर चाइल्ड ऑन द पीस ऑफ पेपर. कोई भी बोर्ड, कलरफुल बोर्ड बना के वहां पे रख देना है. आई थिंक एवरीबडी इज क्लियर विद दैट. सो दैट वाज द फर्स्ट थिंग. नाउ द सेकंड थिंग, वीकनेस. SWOT एनालिसिस जैसे मैंने बोला ना, नो योर चाइल्ड. सी स्ट्रेंथ एवरीबडी नोज. आई एक्सप्लेन दिस टू ऑल द पेरेंट्स बाय डिफरेंट मूवीज बिकॉज आई एम फॉन्ड ऑफ वॉचिंग मूवीज. आई मीन अभी जस्ट मेरे बेटे ने बोला पापा पॉपकॉर्न ऑर्डर कर दो ऑनलाइन. मैंने कहा क्यों? कहता हम घर बैठ के रात को मूवी देखेंगे ना, आज सैटरडे नाइट है. See, we see family movie time Saturday night. Fix होता है. At Saturday night we will see the movie. Anything. So आज कौन सी मूवी देखने वाले हैं? I said Tulsidas Junior. So now that is the movie name which I said to him, and the movie is chosen by him only. अब Tulsidas Junior is a movie in which Junior, I mean the son is there who wants his father to win, but उसके father वो हार जाते हैं, and then वो मूवी में ऐसा कुछ आने वाला है कि जैसे वो जीतेंगे. तो किस तरह से क्या आने वाला है
that we all will see together. But then yes, we have decided a plan. वो जैसे फिक्स है कि भाई आज रात को सैटरडे नाइट इज अ फैमिली टाइम हम करेंगे, तो नो योर चाइल्ड मतलब उसको हमने बताया हुआ है कि सैटरडे को हम देखेंगे, बाकी के दिन में हम नहीं देखेंगे. तो दैट इज योर वन फैमिली रूल ऑल्सो, कि अगर मैं खुद मोबाइल ज्यादा देख रहा हूँ या मैं खुद रात को नेटफ्लिक्स की सीरीज देख रहा हूँ और फिर मैं अपने बच्चे को बोलूँ ही इज अ टीनेज कि टीनेज में भाई इट्स नॉट गुड टू वॉच द सीरीज, देन he will not follow. So the second rule is, जब आप अपने बच्चे को जानना चाहते हैं, then be a good role model for them. Have a fixed schedule also, कि ये शेड्यूल है जिसको कभी कभी वो शेड्यूल भी ब्रेक हो जाता है. ऐसा नहीं है कि भाई थर्सडे को छुट्टी है तो हम वेडनेसडे को भी मूवी देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं देखते. बट देन वी वॉच ऑल द मूवीज टुगेदर. सेकेंड, जब हम बोलते हैं नो योर चाइल्ड, मैं थोड़ा सा ये बीच में आ गया इसलिए बोल रहा था कि वीकनेस, जब स्ट्रेंथ एनालिसिस हो गया हमारा, स्ट्रेंथ हमने किया, वीकनेस की जब बात आई, हमें वीकनेस भी बच्चे की जाननी है. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एवरीबडी इज डूइंग अ मिस्टेक्स, इवन आई एम डूइंग अ मिस्टेक्स. अभी मैं थोड़ा सा डाइवर्ट होके कुछ और बोलूं तो दैट इज माय मिस्टेक, बट देन यू मस्ट लर्न हाउ टू करेक्ट द मिस्टेक्स. से फॉर एग्जाम्पल, आज एक बच्चा है, मैं आप सबसे पूछूंगा, जिसको भी आंसर देना है वो अपना हैंड रेज कर सकता है. आई थिंक मेरे पास उसका वीडियो या ऑडियो भी होगा तो मैं दिखा दूंगा आपको. बट देन सपोज योर चाइल्ड इज फॉन्ड ऑफ ईटिंग आइसक्रीम्स, उसको बहुत ज़्यादा पसंद है. डॉक्टर इज सेइंग कि आपको आइसक्रीम हफ्ते में एक बार देनी है, 15 दिन में एक बार देनी है, जो भी बोला वो आपको सिंपल ये बोला गया है कि भाई इतना देना है, इससे ज़्यादा नहीं देना है. नाउ योर चाइल्ड स्टार्ट्स टू थ्रो टेंट्रम्स, रोड पे एकदम जिद करने लगता है. देन हाउ विल यू एक्सप्लेन टू योर चाइल्ड कि नहीं, यू विल गेट इट ओनली वंस. एनीवन कैन रेज द हैंड एंड आंसर. कभी ऐसा हुआ ही नहीं किसी के साथ? या मुबशिरा, आप बोलिए. फर्स्ट थोड़ी देर के लिए तो उसके टैंट्रम्स को आप इग्नोर करो, लेट हिम काम डाउन, देन एक्सप्लेन व्हाट यू वांट टू एक्सप्लेन, लाइक whatever you said. So the first and foremost important thing which she said is systematic ignoring. उसको इग्नोर करो. अब इग्नोर करो मतलब ऐसा है कि वो कितना भी टेंट्रम कर ले, ऐसा हो सकता है कि वो टेंट्रम कर रहा है और बाजू वाला आके बोलेगा मैडम 5 रुपए की तो आइसक्रीम है, दिला दो ना, उसमें क्या इतनी जिद कर रहे हो. बट देन व्हेन यू से नो, स्टिक टू इट. सिस्टमेटिक इग्नोरिंग कुछ नहीं, उसको सिर्फ ये थोड़ा उसको टेंट्रम थ्रो करना है, करने लेने दो. ओनली मेक श्योर कि वो अपने आप को इंजर नहीं करता उसको, क्योंकि कई बार क्या होता है ये बच्चे हेड बैंगिंग चालू कर देते हैं, ये सब करते हैं, तो उस टाइम पे उसको इंजरी नहीं होती, उसका ध्यान रखते हैं. एंड देन we will explain that this is the reason that doctor has said that if you eat more ice cream you will have dental caries, आपके दांत खराब हो जाएंगे, आप बीमार पड़ोगे, रिपीटेडली ये होगा, इसलिए हम नहीं दे रहे. एंड बिकॉज यू हैड इट yesterday only, तो आज नहीं मिलेगी, हमने डिसाइड किया हुआ है. और वो उस टाइम पे जब डिसाइड किया हुआ था, फैमिली पॉलिसी ये भी होनी चाहिए that everybody is following the same policy. मैं खुद 15 दिन में एक बार खा रहा हूँ, फिर बच्चे को बोल रहा हूँ कि हम 15 दिन में एक बार खाएंगे. Modeling. So role modeling, yeah, perfect. Okay, now coming to the thing that मान लो कि आपने मना किया, इसी सिचुएशन को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ. आपने मना किया था बच्चे को, पर बच्चे ने कहीं से कुछ पैसे चुरा लिए और वो खुद खा के आ गया. अब क्या करेंगे आप? Anyone? पहले ही मैंने बोल दिया था कि everybody is in a learning phase. Yeah. तो There आप- is nothing called best answer, है ना सर? हाँ, बेस्ट आंसर कुछ नहीं है, आप जो भी बोलोगे वो सही हमने होगा. जो किया. Yeah. यस पूजा जी. मैम आप अनम्यूट होइए. हाँ जी सर, मैक्सिमम तो फिर पेरेंट्स जो है वो मारते ही हैं. हाँ, नहीं तो आप क्या करेंगे, आपके बच्चे ने
₹5 चुरा के आइसक्रीम खा लिया, अब आप उसको क्या करेंगे उस टाइम? सर मैं तो फिर भी थोड़ा पेशेंस दिखा के उसको समझाने की कोशिश करूंगी, हाँ, क्योंकि ऐसी सिचुएशन आई नहीं है एक्चुअली मेरे साथ, लेकिन फिर भी मैं उसको समझाने की कोशिश करूंगी। लेकिन मैक्सिमम यही होगा कि मारते ही हैं बच्चे को। मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है। हम्म। श्री विद्या जी, या Yeah, good evening, sir. Yeah. Like, maybe I will ask him, I'm sure you would have enjoyed the ice cream, but, and appreciate for what he has enjoyed first. Then I'll ask him, why did you, or where did you get the money to buy the ice cream? Because only yesterday I bought you the ice cream, and the thing was we had a understanding that we'll have the ice cream when we have a family time together. So maybe I'll ask him from where, how did you manage to get the ice cream? Maybe that the trust that I have between my son and me would make him tell it openly that what he has done. That would be my opinion, sir. पर आप उसको कुछ बोलेंगे नहीं, तुमने चोरी क्यों की, ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे? No, I don't, because no, sir. Like, I have never dealt with my son in that manner. ओके, एनीबडी, मतलब कभी भी किसी के साथ ऐसा हुआ है कि आपको पता नहीं था और वो कुछ ऐसा करके आ गया जो आपको ऐसा लगा कि नहीं करना चाहिए, तो आप किस तरह से डील करेंगे? कोई भी? सबके बिल्कुल अच्छे बच्चे, कुछ नहीं हुआ है पूरी लाइफ में। या प्रिया जी? So first I get angry, Yeah. really angry after coming to know कि ऐसा कुछ हो गया है against my expectations. सबसे पहले क्लैप कर दो प्रिया जी के लिए, सब लोग, जितने भी हो। एंग्री होना नॉर्मल चीज है, आई विल बी एंग्री। अगर मेरा बच्चा चोरी करता है तो मैं खुद एंग्री हो जाऊंगा, इसमें कुछ वो नहीं है। ठीक है, यू विल बी एंग्री देन। So I will need some time to tell myself कि he has done a mistake and अभी मैं उसको immediately reprimand करूंगी तो it is not going to reach him, or either he will go into a shell because I am constantly scolding him, or he's not going to come out with the reason why it will not come out well. So I generally try to be silent for a while, sir. Uske baad, later in the night, that day when the day has progressed, because this is not an immediately dangerous situation, then I will definitely bring up that issue and we will talk about it. Okay. What happened, why, and ऐसे करके. Definitely. Now, just adding to your point, Priya ji, first thing, I'll be angry. Definitely, I will be angry. But then, I will not react. I will respond. And how I will respond? The first thing is, पहले ये देख लो, अपने सब 4-5 फ्रेंड के साथ है जिनके साथ वो आइसक्रीम खा के आया था, तो उन सबके सामने तुरंत उसके ऊपर चिल्लाना नहीं। The first and foremost important thing, never criticize your child in front of their friends. Never scold. उनको कभी भी इस तरह से उनके फ्रेंड के सामने गुस्सा नहीं करना है। क्यों? उससे क्या हो जाएगा? मम्मी तो कचकच करती रहती है, पापा तो मारते रहते हैं। ये जो एक बार दिमाग में आ गया ना, देन वो आपको पता चल गया। कई बार ऐसी चीजें होंगी जो आपको पता नहीं चलेंगी, तो उस टाइम पे इश्यू होगा। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, थोड़ा सा आप टाइम आउट मेथड अप्लाई करो। एंग्री होना सबके लिए इम्पोर्टेंट, सबको। मैं बोला, मैं भी एंग्री हो जाता हूँ जब मुझे पता चलेगा, अरे यार मैंने इतना सिखा दिया बच्चे को, फिर भी उसने चोरी की, ₹5 की चोरी की, उसको क्या क्या नहीं दिया, उसको इतनी सारी चीजें दी थी। ये सब इमोशनल अंदर से टर्नओवर पूरा आ जाता है कि यार ये सब किया, फिर भी उसने ₹5 की चोरी करके ये किया। सी यू रिमेम्बर गांधी जी, he has done some thing like this in his childhood, और उनके पापा ने क्या किया? His father said, you have done a thing which is not right. You are not wrong, but the thing which you have done is not right. So as a punishment, he used the word, as a punishment, I am doing fast. ठीक, होता क्या है, जब बच्चे छोटे होते हैं ना, उनको ऐसा लगता है कि मैंने कुछ गलत किया, and my father or my mother is actually giving punishment to himself or herself, वो एकदम से चेंज हो जाते हैं। एंड यू सी, गांधी जी लर्न द प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस एंड फास्टिंग, जो 2 चीजें उन्होंने सीखी, ट्रुथ, नॉन वायलेंस एंड फास्ट, तो उससे आज हमको फ्रीडम भी मिला। तो बच्चों को एक टाइम आउट, मतलब वो एक सिंपल साइकोलॉजी का प्रिंसिपल है कि अगर आपका बच्चा 5 साल का है जिसने ये चोरी की और 15 साल का है जिसने चोरी की, दोनों में बहुत फर्क है।
5 साल के बच्चे को कुछ पता नहीं होता, उसको लाइफ स्किल्स वैल्यूज पता नहीं है, उसने सिर्फ सिंपल आइसक्रीम खाने के लिए वो ले लिया। तो आपको सिर्फ 5 मिनट शांति रख के उससे 5 मिनट शांत टाइम आउट जो बोलते हैं, वो 5 मिनट के बाद उससे बात करनी है और उसको समझाना। बट 15 साल के बच्चे ने अगर ऐसा किया, देन दैट इज अ प्रॉब्लम। 15 साल का बच्चा, इतने टाइम से आप उसको सब कुछ दे रहे थे एंड देन ही इज डूइंग दिस, that means you need to teach him everything, but the rule remains same again, not to criticize him, criticize the act not in front of his friends and then talk to him. Most important thing यहाँ पे आ जाती है, जो हम आगे एक दूसरे 15 साल का जो मैंने एग्जांपल दिया उसके ऊपर से बोलेंगे। ये 15 साल के बच्चे से आप कम्युनिकेट करते रहोगे। होता क्या है, मैंने ये देखा है, जितने भी बच्चे छोटे होते हैं उनके पेरेंट के साथ वो पूरा कम्युनिकेट करते हैं। आई स्टिल रिमेम्बर व्हेन आई सेंड माय डॉटर टू अ स्कूल, अ नर्सरी, एंड व्हेन शी केम बैक, पापा आज तो टीचर ने मुझे ये कराया, आज मेरे फ्रेंड ने ये किया, वहां पे एक उसने तो चड्डी में पॉटी कर दी थी, मतलब एवरीथिंग व्हाटएवर यू कैन थिंक ऑफ, बच्चे सारे शेयर करते हैं। एंड नाउ माय सन इज इन 9th स्टैंडर्ड, तब मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझसे इतनी बातें शेयर क्यों नहीं करता। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमने वो कम्युनिकेशन में एक चीज ऐसी कर दी थी, वी गेट एंग्री, तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल करना है। सेकेंड, वी हैव स्टॉप लिसनिंग, वी हैव जस्ट स्टार्टेड एडवाइजिंग। हमने शुरू कर दिया, बस ऐसा नहीं करते, ये करना बुरी बात है, पहले उससे पूछो तो सही उसने क्या किया, कैसे किया, क्यों नहीं क्यों किया, वो सब चीजें पूछना और उसके बाद में समझाना। इस चीज को हम इस तरह से भी समझा सकते हैं कि हम उनको स्टोरीज के हीरोज और विलन के जो कैरेक्टर होते हैं उनके अंदर इनकॉर्पोरेट करते हैं। यू जस्ट हैव सम स्टोरी इन विच one person is a thief, say for example Alibaba and 40 chore. Now some chores are there and you just say that okay Param, you are this thief, then he will feel, oh I'm becoming a thief, so I should not be like this, so वो तुरंत उसको उस स्टोरी से कोरिलेट होना चालू हो जाएगा। तो वो एक इम्पोर्टेंट चीज है। एक वीडियो आई थिंक अगर इसमें प्ले हो रहा है मेरे में तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, एंड आई जस्ट सी कि आप इसमें किसकी क्या गलती थी। तो सिर्फ 1 मिनट मुझे दीजिए। ये 15 साल का जब एग्जाम्पल याद आया तो उसके ऊपर से मेरे पास एक वीडियो है, या आई गॉट द वीडियो। ये पूरा सा डिफरेंट इश्यू है, बट देन चीज वही है कि 15 साल का बच्चा है, यहाँ पे 15 साल की बेटी है। सो जस्ट सिर्फ एक ही मिनट। बेटा एक्चुअली वो माँ आज स्कूल में क्या? आज स्कूल में रिसेस में वो अभिषेक है ना, अभिषेक ने क्या किया? अभिषेक ने मुझे अलग बुलाकर आई लव यू कहा। बट माँ उसे बिल्कुल भी लाइक नहीं करती हूँ। मम्मा, लेकिन मम्मा एक बार मेरी बात सुनो, एक बार बात मत लगा मुझे, बात मत कर तू मुझसे। क्या कुछ नहीं किया तुम लोगों के लिए? पालने में कोई कमी रह गई क्या? किसी चीज की रोक टोक नहीं है, जो मांगा वो दिया, फिर भी ये सब। कि मॉम एक बार मेरी कब से चला तेरा चक्कर? हाँ बोलना, कब से चल रही है चक्कर? तूने ही बढ़ावा दिया होगा, वरना उस लड़के की हिम्मत नहीं होती। सो ये एक सिंपल सा वीडियो क्लिप मैंने आपके साथ शेयर किया।
क्या गलती की इसमें मदर ने? कोई बोलेगा? Anyone? So may I? Yeah, Shilpa ji. So she didn't let the child speak what the child was wanting to say. She was like more jumping down to conclusions and blaming the child for, for not, there was no fault of the child there. Yeah, but then So- she was just scolding the child for no reason. For no reason at all, yes. तो उसमें ये हो गया था कि उसने जो सुनना था वो सुनना बंद कर दिया। Exactly. यहाँ पे एग्जैक्टली उसने क्या एकदम से पूरा लेक्चर देना जो चालू कर दिया, जो स्कोल्डिंग चालू कर दिया, उसकी वजह से प्रॉब्लम। सो ये एक चीज थी जो नहीं करनी थी। तो करना क्या चाहिए बच्चों के साथ जब हम बोलते हैं नो योर चाइल्ड? आई थिंक साउंड आ रहा है ना सबको? आई जस्ट गॉट अ मैसेज दैट नो साउंड। Yes, sir, it's clear. सो करना क्या चाहिए जब भी हम नो योर चाइल्ड की बात कर रहे हैं? तो उस टाइम पे इम्पोर्टेंट थिंग 2-3 चीजें मैं बोल के फिर आपके लिए ओपन सेशन करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे बोला था 40 मिनट्स एंड आई ऑलरेडी टेकन 25 मिनट्स। सो इन लास्ट 15 मिनट्स मैं सिर्फ ये चीज बताना चाहता हूँ कि जब बच्चों के साथ हम डील करते हैं उसके बेसिक 3-4 प्रिंसिपल जो मैंने अपने बच्चे से सीखे हैं। द फर्स्ट प्रिंसिपल विच आई लर्न वाज अ रोल मॉडलिंग। रोल मॉडलिंग मीन्स when I say to my child, I still remember in 2018 I wrote an article in a newspaper जिसमें लिखा था मैंने, सबसे पहला आर्टिकल आया और मैं बड़ा पेपर का कटिंग लेके घर पे आया, उसका हेडिंग था जब आप घर पे हैं तब मोबाइल और लैपटॉप का यूज मत करें। एंड व्हाट आई वाज डूइंग, आई वाज यूजिंग मोबाइल एंड लैपटॉप फॉर 6 आवर्स अ डे एट होम ओनली। एंड माय सन सेड, पापा पहले खुद तो करो, बाकी बाद में सबको बोलो। So that is the first thing which my child taught. The second thing which both the children taught me is a love languages. I request all parents to read a book by Gary Chapman. That is a 5 love languages. The name of the book, I'll just typing into the chat box, 5 love languages. It is not only for the children, it is for the spouse also. But then this is something called as, I'm just typing, 5 love language by Gary Chapman. And this is what my children have taught me, that if you fulfill their love language, they will do whatever you want. And now what are these 5 love languages? So I just want one volunteer. So Mubashira, right. Mubashira, I just want to know the age of your child. 22 and 21. 22 and 21, fine. So can you tell me what is the love language of your child? Hugging or Hugging. sometimes kissing on the forehead. Okay, so that is physical touch. That is what you want to say. Okay. See, there are 5 love languages. I'm telling you the names. One is quality time. Yes. Second is words of affirmation. Yes. Third is physical touch. Fourth is receiving gifts. And fifth is acts of service. So you choose physical touch, right? Yes. Now, see, the thing is, sometimes it happens that we may not be aware that what is the love language. As you are saying कि भाई उनको physical touch ज़्यादा पसंद है, तो हो सकता है कि उनके लिए वही love language. But then now I'm giving you one quiz which you will be attending, and everybody will be saying that. So this is love language quiz which we are going to play. Now you have to just choose from the questions. Jaise, how do you describe yourself? You are an adult, right? Or you are taking this quiz for your child. We are choosing this option because we want to know the love language of your child, right? What is the age of your child? Suppose they are between 9 to 12. Okay. जब आप अपने बच्चे को इन दोनों स्टेटमेंट में से एक प्रिफर करने को बोलते हैं, गिव मी अ हग और यू आर अ टेरिफिक, तो वो क्या पसंद करते हैं बच्चे? Terrific. Yeah, fine. Give me hug. I choose give me hug. Sorry. So we'll just go back. Yeah. No. What I want to say is, My child will choose like. What your child will choose, give me a hug. Okay. Yes. अगर आपने बच्चे को पूछते हैं, I've got a special birthday present for you, and I will help you with your project. What they will choose? Birthday present. Got the present. Birthday present.
I just want Mubashira to answer only because we just want to see one child only at present. And while sharing the screen, I can't see who is speaking. So please, one person only. Ask the child which statement they would prefer. Let's go for a movie or give me a high five. Give me high five. Give me high five. Fine. You are so smart. And have you made your Christmas list? That means the gifts which you want. Christmas list. Christmas list. Would you help me to cook dinner? I like going to fun places with you. Going to fun places. Give me a kiss. You are number one. You are number one. I've got a surprise for you. We can make something really cool. Well, I have got surprise for you. Let's watch TV together. Tag, you are it. Let's watch TV together. You did a great job. You earned a special prize. You have earned special prize. You can invite your friends. Let's go for your favorite restaurant. You can invite your friends. I'm going to give you a big hug. You are an awesome kid. What did You are an awesome kid. You are an awesome kid. Fine. I made your favorite food. I checked your homework and it looks great. I checked your homework and it's looked great. You are fun to hang out with. I'll race you. I'll race you. Wow, you did it. Check under your bed for a special present. Wow, you did it. Wow, you did it. I clean up your room for you. Let's play a game together. Let's play a game. Would you like for me to scratch your back? You can do it. Don't give up. You can do it. Don't give it. What would you like for your birthday? We can pick up your friend on the way to the movie. You can pick up your friend. Okay. I always like doing stuff with you. You are so huggable. You're so huggable. How did you know how to do that? You are brilliant. I can't wait to give you your present. How did you know how to do that? Okay. Last one or two. Don't worry, I'll pick you up on time. Let's spend the day doing whatever you want to. Don't worry, I'll pick you. Okay. Yeah. Fine. Now this is the result in front of you. See, as per your reply, the most important love language for a child is words of affirmation. Whenever you praise your child, I mean son or daughter, they will be liking it more. And as you already said, the physical touch is their love language also. But according to this quiz, see, this quiz is simple quiz by which you can know the different qualities of a child, that they like to be appreciated. If they like words of affirmation more, that means you can just do, if you want that your child should do this things and that things, or if you want that your child should be a discipline, then you should use this love language, words of affirmation. अगर आपको ऐसा लगता है फिजिकल टच जैसे जादू की जपी, तो इन दैट केसेस इज इफ इट इज द केस इन विच द आंसर वाज दिस फिजिकल टच, तो आपको क्या करना है, जब बच्चे को सुबह हम उठाते हैं तो उस टाइम पे बेड में से उठाते वक्त डायरेक्टली उसको उठाना नहीं है, उसके बाजू में जाके सोना है, उसको हग करना है, कडल करना है, उसके बाल में हाथ फिराना है, एंड देन उसको बोलना है कि बेटा चलो खड़े हो जाओ, स्कूल जाना है। जब वो स्कूल से वापस आता है उसको वापस हग करना है, किस करना है, और जब रात को सो रहा है अगेन उसको हग करना है। कहीं पे भी हम कुछ भी बाहर जा रहे हैं और उसको हाईफाई ऐसे करना है, तो उसको मतलब वो फिजिकल टच से एकदम अच्छा लगता है। कोई बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनकी लव लैंग्वेज होती है रिसीविंग गिफ्ट्स। ओवर हियर आई विल क्लियरिफाई दैट इट इज नॉट कि आप रोज उसको नई गिफ्ट दो, बट आप उसको डिफरेंट गिफ्ट्स दे सकते हैं, विच मे नॉट बी अ कॉस्टली गिफ्ट, बट देन हिज और हर लव लैंग्वेज इज रिसीविंग गिफ्ट्स, तो उसको वही पसंद होगा। अगर कोई बच्चा है जिसको एक्ट्स ऑफ सर्विस, मतलब मम्मी के साथ किचन में काम करने में मजा आ रहा है, गार्डनिंग करने में मजा आ रहा है, होमवर्क में अगर मम्मी साथ में बैठती है तो उसको मजा आ रहा है, ऑल दिस इज एक्ट्स ऑफ सर्विस। एंड किसी की अगर क्वालिटी टाइम रिक्वायरमेंट है,
then it is like आपको उसको टाइम ही देना है. So this is how we know our children. ये एक बहुत सिंपल सा क्विज था जो मैंने आपके साथ Thank you, किया. sir. एंड थैंक यू फॉर वॉलंटियरिंग. यहाँ पे मैं उसकी लिंक सबके लिए रख रहा हूँ. जी. यू कैन जस्ट चेक इट. इट इज नॉट 100% कि ये है. क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं हमारे बच्चे को ये पसंद, हमें ये अपने बच्चे के साथ करनी है. आप अगर अपने बच्चे के साथ ये क्विज करेंगे, उसको बोलना नहीं है कुछ भी कि बेटा हम तुम्हारी लव लैंग्वेज जानने के लिए करें. उसको सिर्फ ये पूछना है, अच्छा बेटा अगर मैं तुमको गिफ्ट देती हूँ तो ये दिया तो अच्छा लगा, या मैंने तुम्हें हग किया तो अच्छा. So by that you will be able to know the love language of your child. I think I'm clear with everyone. Okay, fine. Last thing which I want to say is when we know our children, at that time it is most important is we never compare them. ये बहुत खराब लगता है जब कंपैरिजन होती है. आज मुझे कोई बोले कि डॉक्टर प्रशांत आपसे तो वो डॉक्टर अच्छा है, तो मैं तो एकदम गुस्सा हो जाता हूँ कि ऐसा कैसे बोल दिया. हाँ, मैं डॉक्टर बड़ा हूँ, मुझे सब कुछ आता है, तो मुझसे अच्छा कैसे हो गया. So never compare your children. The main mistake done by all, I mean even I have done a mistake in the past that I have compared my children that वो बाजू वाला देखो कितना अच्छा शांति से बैठा हुआ है and तुम ये कर रहे हो. At that time we must accept that every child is different, every child is unique. They are having a special different qualities. My child likes sports, उसको sports पसंद है, but the issue is every 3 months he changes the sports. वो क्रिकेट खेलता है, वो बैडमिंटन खेलता है, वो बॉक्सिंग खेलता है, बट देन बस उसको एक बार आ गया खेलना तो उसके बाद उसको चेंज करना है. तो उसको मैं कंपेयर करता रहूं कि नहीं तो एक ही चीज में सक्सेस हो जा, तो ऐसा नहीं. वो अपनी हॉबी की तरह ले रहा है उसको, वो स्पोर्ट्स को अपने प्रोफेशन की तरह नहीं ले रहा. सो आई ऑल्सो लर्न कि मुझे उसको कंपेयर नहीं करना है. So I also request all the parents that knowing your child is simple thing. Give them unconditional love. With, I think if I'm having a Sadhguru's video, then I'll just show you the video and end my talk. That this is what is required. Yeah, so I am having his video. I'll just share with you and then open house for all of you. Just a minute. Yeah. If you love a person, should you let them do what they want to do, or should they do what you want them to do? No, no, for most people, love means you must do what I want. No, no, love means they can do what they want and we will love them. So this is what Sadhguru said, that whatever is required is love them unconditionally and let them do the things which they want to do and not the things which you want them to do. So thank you so much for listening for around, yeah, my time is over, 35-40 minutes. Yeah. Any question? Then I'm fine. We can continue listening to you. आप time देख देख के बोल रहे हैं sir. वैसे we can continue listening to you. It is reliving the parenting moments actually. Many of us will feel, especially जिनके बच्चे 15 साल के ऊपर के हैं, और बहुत लोग यहाँ पे हैं जिनके kids are above 15. So I myself went through this कि मैंने सभी गलतियां ही की हैं, सिर्फ और सिर्फ. I would have been a good teacher, but I think I've been a very bad parent. और उसमें ये याद रखिए, हम सब साथ हैं. ये होता है ना कि हम सब साथ हैं. Everybody has done a mistake. I still remember when I scolded once my daughter. She is 10 now. तो जब भी मतलब उस टाइम पे रीजन कुछ और था. I was busy with some work and she was repeatedly asking something. I have answered 3-4 times, but then 5th time I reacted. And then since last 3 years she is saying, उस दिन आप मेरे पे गुस्सा हुए थे. सिर्फ एक दिन मैं गुस्सा हुआ हूँ, तो अभी भी 3 साल से मुझे यही बताती है. But then again, it's fine. Everybody does a mistake. जैसे मैंने बोला वैसे I was a angry young man. मैंने अपने बच्चे को स्लैप भी किया था. वो 15 साल का हो चुका है अभी. But then at that time I was 26. तो मुझे खुद को पता नहीं था कि भाई क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है. And majority of time, remember, I mean, all that we all learn parenting styles from our parents. When I was a child, I was a stubborn child. I used to get slaps. तो मुझे ये पता चला कि जब मारते हैं तभी सीखने में आता है, समझ में आता है.
सो आई स्लेप्ट माई चाइल्ड, बट देन आई रियलाइज कि वो उन्होंने तो मुझे मारा है, वो गलत किया था, मैं भी गलत कर रहा हूँ, तो उसको मैं थोड़ा ब्रेक करता हूँ. माई फादर नेवर न्यू कि ऐसे मारने से उसको खराब लगा है, बट देन आई न्यू कि भाई मुझे खराब लगा था तो इसको भी खराब. So we just change with learning experiences. So that is what is knowing your child and parenting. Thank you. सर आई हैव अ क्वेश्चन. अभी हमारी कम्युनिटी में जितने लोग हैं वो लोग स्पेशल नीड बच्चों के साथ काम करते हैं. सो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि ये पेरेंटिंग स्टाइल्स उन बच्चों के लिए कैसे एप्लीकेबल, उसमें से कौन सा है जो सबसे स्ट्रांगली एप्लीकेबल है, या और क्या है जो यू कैन कंट्रीब्यूट ऑन दैट? I'll say that parenting style, I work with many such special children. Even सूरत में एक स्पेशल डाउन सिंड्रोम बच्चे हैं जो मेंटली रिटार्डेड भी होते हैं. ऐसे बच्चे हैं, मतलब लर्निंग डिसेबिलिटी के साथ उनको मेंटल रिटार्डेशन भी होता है. बट व्हाट आई लर्न फ्रॉम दैट पेरेंट्स इज एक्सेप्ट द चाइल्ड. दिस इज माय चाइल्ड, जैसा भी है मेरा बच्चा है. मैं अगर चाहूँ कि अमिताभ बच्चन मेरे बाप बन जाए या आलिया मेरी बेटी बन जाए तो ऐसा नहीं होने वाला है. जो है उसको पहले एक्सेप्ट करना सीखो. सेकेंड, नेवर फील अशेम्ड फॉर योर चिल्ड्रन. उसमें कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव रहता 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 ही. सी इट इज नॉट ऑलवेज अ क्वालिटी कि भाई उसको स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन है अगर, तो वो सबके सामने ऐसा करेंगे तो कैसा लगेगा. वो अगर जब हम उसकी वजह से अपने आप को शेम फील कराते हैं. आई स्टिल रिमेम्बर, आप जैसे बोल रहे हो वैसे जिनके दो बच्चे होंगे, एक स्पेशल बच्चा और एक नॉर्मल बच्चा. 18-year-old girl child came to me for a counseling that my brother is a mentally retarded. उसको समझ में नहीं आता कि कब क्या करना चाहिए. हम सब लोग बैठे हुए हैं और वो पैंट में सुसु करके आ जाता है. मैं अपनी फ्रेंड के सामने कितना शेम फील करती हूँ कि मेरा भाई मेरे से बड़ा भाई है और ऐसा हो जाता है उसके साथ. द इश्यू वाज उसने कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया कि बिकॉज माय ब्रदर इज हैविंग सम स्पेशल इश्यूज, उसकी वजह से वो कर रहा है. वो जानबूझ के तो नहीं कर रहा, तो आपको वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा. सेकेंड, द पेरेंटिंग स्टाइल इज इन सबके साथ साथ जब ऐसा भी बच्चा है देन एट दैट टाइम यू मस्ट हैव अ पीयर ग्रुप्स. पीयर ग्रुप्स मतलब आपके सेम जैसे भी जितने भी हैं पेरेंट्स. हम लोग नॉर्मली यही करते हैं, घूमने जाते हैं तो अपने जितनी जैसी मतलब सबके साथ बनती है ऐसे लोगों के साथ जाते हैं. तो जैसे जितने स्पेशल बच्चे हैं उनके पेरेंट्स अपना खुद का ग्रुप बना सकते हैं. थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस पेरेंट्स फॉरगेट्स टू एंजॉय देयर लाइफ. वो अपनी लाइफ अपनी हॉबी एंजॉय करना भूल जाते हैं. आई ऑलवेज से, मतलब मेरे पास, मैं पीडियाट्रिक में 16 साल की मेरी पीडियाट्रिक प्रैक्टिस में मैंने ये देखा है कि जिनके स्पेशल बच्चे होते हैं ना, तो उनके लिए ये हो जाता है कि वो पूरा टाइम उसके पीछे ही होते हैं, वो अपना कुछ नहीं कर पाते. फाइंड आउट सम टाइम फॉर यू ऑल्सो, बिकॉज इफ यू आर नॉट हैप्पी होगा क्या. आप सिर्फ अपने बच्चे के लिए केयर कर रहे हैं और फिर क्या हो जाता है, एट अ टाइम बर्नड आउट आ जाता है. आपको करना सब कुछ है बट फिर आप कर नहीं पाते, फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, सब कुछ आता है. तो उसका एक ही रीजन है, हैव सम मी टाइम ऑल्सो. मेरा टाइम होना ही चाहिए. वो मी टाइम के लिए फैमिली का सपोर्ट लो, किसी का भी सपोर्ट लो, बट देन हैव सम मी टाइम. वो मी टाइम से ये होगा कि जब आप ज्यादा खुश होंगे तो आप अपने बच्चे को जो भी स्पेशल टाइम देना है, जो भी देना है. आई हैव सीन मदर्स, स्पेशली मदर्स, आई एम सेइंग दिस, कि उन्होंने अपनी कैरियर बच्चों के लिए छोड़ी हुई है कि बच्चे हैं. बट सी होता क्या है, उन्होंने छोड़ी हुई है क्यों, क्योंकि मेरा बच्चा अच्छा हो. बट कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप होता है और बच्चे के सामने बोलते हैं मैंने तुम्हारे लिए अपनी कैरियर छोड़ी है. पूरा जो किया ना 20 साल 25 साल, वो एक ही सेंटेंस में खराब हो जाता है. सो अगर आपने अपने लिए मी टाइम निकाला, उसमें कैरियर छोड़ा कोई बात नहीं, बट उसके साथ साथ अपना मी टाइम निकाला, यू बिकेम हैप्पी, तो वो कभी नहीं निकलेगा. क्योंकि आपको करना ही था और आपने किया है, बहुत अच्छा किया है. बट देन यू नीड समवन टू एनकरेज यू कि जो आप कर रहे हैं वो अच्छा है, और दूसरा खुद के लिए भी थोड़ा कुछ कर रहे हैं तो आपको भी मजा आएगा. तो वो एक निकालना जरूरी है. एंड लास्ट, जब ये बच्चों में टैलेंट जो भी होती है, सी तारे जमीन पे मूवी सबने देखी है, मतलब मेरे पास जितने बच्चे आते हैं, मैं आज दिखा नहीं पाऊंगा, बट मेरे क्लिनिक में जो भी बच्चे आते हैं ना, जो स्पेशल नीड बच्चे हैं या नॉर्मल बच्चे हैं या जो भी हैं, उनको हम एक पेपर दे देते हैं, क्रेयॉन्स दे देते हैं, जो भी कलर करना है करके ले आओ. जैसे मैंने पहला आपको स्ट्रेंथ वाला आपके घर में चिपकाने को बोला, वैसा हम अपनी हॉस्पिटल में चिपकाते हैं. इट इज नॉट नेसेसरी कि वो ब्यूटीफुल ड्राइंग्स ही होते हैं, वो सिर्फ
लाइंस भी होती है जो हमने रखी हुई है, बट वो बच्चा जब सेकेंड टाइम मेरी क्लिनिक पे आता है ना, तो वो देखता है मेरा यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है, उसको यहाँ से मजा आता है। तो ये चीज पेरेंट्स को भी करनी है कि भाई आप अपने बच्चे की जो भी एबिलिटी है उसको बाहर लाइए। मैं काफी डाउन बच्चे तो उनको ये बोलता हूँ कि उनकी स्पेशल एबिलिटी होती है म्यूजिक। मैंने इतना अच्छे अच्छे म्यूजिशियंस देखे हैं, उनकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होती है। आई स्टिल से मेरी बिल्डिंग में एक लड़की रहती है जो रबर गर्ल के नाम से जानी जाती है। वो योगा के इतने ज्यादा पोजेस कर लेती है कि वो पूरा जो करेगी वो मैं जिंदगी में नहीं कर पाऊंगा, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, वो पूरा कर लेती है। तो उसको अप्रिशिएट करना पेरेंट्स को भी, मतलब आप अपने बच्चे की क्वालिटी, मैं ये बोलता हूँ कि नॉर्मली ये होता है कि हर जगह पे ये देखा गया है, पेरेंट्स अपने बच्चों को बेटा एबीसीडी बोलो, अगर एबीसीडी बच्चा नहीं बोला तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसको इतना समझ में आना चाहिए कि मुझे खाना कैसे खाना है, मुझे किसी और को भूख लगी है तो उसको खाना कैसे देना है। ये लाइफ स्किल्स अगर हमने उसको सिखा दी, हाँ, तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा। तो आई ऑलवेज से कि बच्चों को सिखाते वक्त आपको सिंपल सिंपल चीजें सिखानी है, नहीं कि हर बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर इंजीनियर ही बनना चाहिए। कोई बच्चा किसी भी फील्ड में जाए वो अच्छा ही करेगा। मैंने अपने बच्चे को ये लिबर्टी दी हुई है, 9th 10th में आ गया वो अभी, कि तुझे जो ब्रांच लेनी है ले सकता है। एंड ही सेड पापा बोलो ना मैं कौन सी ब्रांच लूं। मैं कुछ नहीं बोल रहा अभी उसको, क्यों? क्योंकि आई जस्ट वांट कि वो खुद एक्सप्लोर करे, उसको जो पसंद आता है वो करने दो, एंड देन यू नेवर नो कि वो क्या क्या करता है। मैम आप म्यूट है। Yeah. So anybody would like to ask any questions? Sir has just 1 odd minute. Any open question? Anyone? Nahin. So I would like all of you सर to speak. Okay. सर कौन ये है? लव का सोनी, दिस Sorry. सोनी Yeah. सर जो लव का एक लिमिट बोलते हैं कि हर चीज लिमिट में होनी चाहिए, तो ये जो लव होता है अनकंडीशनल लव, इसका क्या लिमिट होना चाहिए? किस एक्सटेंट पे हम बच्चे को जाके कि अब इसको रोकना चाहिए, ये एक्सटेंट कैसे डिसाइड हो? फर्स्ट थिंग, आपने जो दोनों चीजें पूछी ना, दोनों अलग अलग चीजें हैं। Hmm. लव ओके अनकंडीशनल अनलिमिटेड ही रहेगा, उसने कुछ भी कर दिया। आप एक चीज ओके समझो, बच्चे ने जो कुछ भी किया, सही किया गलत किया, वो लव तो रहने वाला है। अब जो आप बोल रहे हो कौन सी लिमिट लगानी, वो लिमिट में मैंने यही बोला कि आप छोटी छोटी चीजों से, सी आज मैं एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। जब आपने ये पूछा तभी मैं आपको बता रहा हूँ। माई सन वेंट टू अ ट्रैकिंग, अभी जस्ट 2 दिन पहले वापस आया। वहां से उसने मुझे फोन किया, पापा एयरपोर्ट आपने कितने में लिए? आई ब्रॉट इट एट 12,000 रुपीज। कहते पापा यहाँ पे 5,000 में मिल रहा है। मैंने कहा बेटा वो चीटिंग कर रहा होगा, 5,000 में नहीं मिलेगा, एप्पल का एयरपोर्ट 12,000 का जो स्टैंडर्ड प्राइस है उसी में मिलता है। तो कहता है नहीं मैंने IMEI नंबर डाला उसका, मतलब किड्स आर स्मार्टर। IMEI नंबर डाला, वो IMEI नंबर दिखा रहा है कि ये वैलिड एप्पल की चीज है। देन आई सेड कि इट्स नॉट पॉसिबल। अच्छा मैंने कहा उसको एक चीज बोल कि बिल में देगा, वारंटी के साथ देगा। तो उसने बोला कि नहीं पापा वो बिल तो नहीं देगा, बट ये चीज जेन्यून है, हमने यूज करके भी देखी, ये चीज जेन्यून ही दिख रही है। देन आई सेड बेटा दिस जो आपको दिख रही है ना वहां पे, वो कहीं ना कहीं उसने चोरी का माल है, इसलिए वो आपको दे रहा है। एंड माय सन आस्क्ड पापा अगर ये चोरी का माल दे रहा है और हमको 7,000 का फायदा हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए? नाउ सी द Difficult. थिंग इज, Difficult question. he asked me क्या करना चाहिए। नाउ देयर आर टू थिंग्स व्हिच कैन बी पॉसिबल ओवर हियर। फर्स्ट, आई कैन जस्ट आंसर बाय माय एक्सपीरियंस एंड विजडम दैट डोंट गो फॉर इट। क्यों? क्योंकि ये चोरी की चीज है। और दूसरा कि कल किसी ने कोई कंप्लेन की, क्योंकि IMEI नंबर तो दिख रहा है उसका, कंप्लेन की कि मेरे ये खो गए हैं और आपके पास मिले, तो होगा क्या कि आपने चोरी की, आपने तो खरीदा है और आपके पास बिल नहीं है। तो मेरा दिमाग तो यही कहता है कि इसको खरीदना नहीं चाहिए। तो मैं उसको डायरेक्टली एडवाइस दे सकता था कि बेटा मत लो। दैट इज द फर्स्ट थिंग विच इज 90% टाइम्स ट्रू। क्यों? क्योंकि आपने अपने एक्सपीरियंस से आपको पता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो राइट है कि नहीं।
तो आपको एडवाइस देनी ही चाहिए और तभी आपको उसको रोकना है। जो आप बोल रहे हो ना कि कौन सी लिमिट पे रोकना है, वो 5,000 में खरीद रहा है कोई चोरी की चीज तो आपको वहां पे रोक ही देना है। सेकेंड इज हैव अ कम्युनिकेशन विंडो ओपन। तुम्हें क्या लगता है क्या करना चाहिए? अपन ले लेते हैं ना 7,000 रुपये बचेंगे, उसमें से कुछ और करेंगे, दैट इज द फर्स्ट रिस्पॉन्स। वो रिस्पॉन्स आ सकता है कि भाई ऐसे करेंगे तो होगा। अगर उसने ऐसा बोला देन यू कैन जस्ट आस्क अ सेकंड क्वेश्चन, डू यू थिंक इट इज अ गुड टू बाय? कुछ चोरी की चीज खरीदना अच्छी चीज है? यू कैन आस्क सेकंड क्वेश्चन, यू डोंट डायरेक्टली से कि चोरी की चीज नहीं खरीदनी चाहिए। when you ask repeatedly question it will say that at least ask 5 whys to your child। कभी भी कुछ भी हो 5 वाई, मतलब कई बार ऐसा होगा कि 2 वाई पे खत्म हो जाएगा। जैसे मैंने ये बोला कि सेकेंड वाई पे क्या तुम्हें लगता है कि ये खरीदना चाहिए चोरी की चीज, वहां पे आंसर आ जाएगा नो, या आंसर आ गया यस। पॉसिबिलिटी तो दोनों होती है, बिकॉज ऑलवेज यस और नो दोनों की पॉसिबिलिटी होती है। इट्स नॉट ऑलवेज कि सबका आंसर यही हो, नहीं तो फिर तो दुनिया में सब चीजें होंगी नहीं। अगर थर्ड आंसर आया यस, खरीदनी चाहिए यस, देन यू शुड हैव सम व्हाई क्वेश्चन आल्सो। क्यों चोरी की चीज खरीदनी चाहिए? ऐसे करके जब आप फिफ्थ वाई पे जाओगे तब आपको पता चलेगा कि वो सिखा पाएंगे। लिमिट 5 रुपए की चोरी भी गलत है और 5 लाख की चोरी भी गलत है। जैसे मैंने इनिशियल जो स्टार्ट किया था वो 5 रुपए उसने जब आइसक्रीम के लिए चुराए, वहीं से हमें स्टॉप करना जरूरी है। तो जो भी चीज, देयर आर फ्यू थिंग्स विच आर एक्सेप्टेबल, देयर आर फ्यू विच आर नॉट एक्सेप्टेबल। सब फैमिली के अपने अपने रूल होते हैं। जैसे से फॉर एग्जांपल एज अ पीडियाट्रिशियन आई ऑलवेज से कि लेस देन 2 year old child should never be exposed to a mobile TV screen। कोई भी स्क्रीन नहीं देना चाहिए। and that is not my recommendation, that is all over Indian Academy of Pediatrics, American Academy of Pediatrics, सबका recommendation वही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्टडीज देखे हुए हैं। तो अब जब आपने देखा, मैं हमारी क्लिनिक में यही करता हूँ कि जब भी कोई मदर आती है वैक्सीनेशन के लिए, 6 वीक्स का बच्चा है, मैं पहला इंजेक्शन देता हूँ और मदर एक राइम दिखाती है और बच्चा थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है। एट दैट टाइम ओनली वी से स्टॉप फ्रॉम हियर ओनली। क्यों? क्योंकि अभी आपको लग रहा है कि 1 मिनट जो बच्चा रोया वो आपके राइम दिखाने की वजह से चुप हो गया, बट इसका जो फ्यूचर में हजार्ड होने वाला है वो ज्यादा होने वाला है। तो जहां पे आपको स्टार्टिंग है वहीं से वो लिमिट लगाएं। बट देन ऐसा नहीं है कि उसको लव हम नहीं करेंगे। आई थिंक आई एम क्लियर जो मैंने बोला उसको। जी जी सर, यही एक्चुअली हुआ। कुछ एग्जाम्पल ऐसा ही कि बच्चा क्लास से किसी का कोई सामान उठा के लाया और जब उसे रिटर्न करने के लिए कहा गया तो वो डिफेंड करने लग गया खुद को कि ये मेरा है, मैंने लिया है, मेरा है, अब मेरा हो गया। सो इन दैट केस लाइक हम कैसे उस बच्चे को, क्योंकि बिना स्ट्रिक्ट हुए वो वापस करेगा नहीं। यहीं पे मैं बोल रहा हूँ स्ट्रिक्ट होना बहुत जरूरी है। आपने जो बोला कि उसने जो गलती की है उसको सुधारना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो बहुत छोटी गलती है। इसको अगर हम सुधार देंगे, यहीं से अटक जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। पर उसके लिए से फॉर एग्जाम्पल वो लेके आया, जो चीज वो लेके आया है, और अगर आपको ये लगता है वो कोई छोटी सी पेंसिल अट्रैक्टिव कुछ, क्योंकि आजकल तो ऐसा होता है कि वो जो पेंसिल्स होती है वो अलग अलग, हम लोगों के लिए सिर्फ ऐसा था कि एक सिंपल नटराज की पेंसिल आती थी या अप्सरा की पेंसिल आती थी जो हम यूज करते थे। अभी तो पेंसिल्स इतनी अलग अलग अट्रैक्टिव शेप्स में आती है कि बच्चे को वो पसंद आता है। तो उस टाइम पे उसको ये बोलना बहुत जरूरी है कि बेटा तुमको अगर ये चीज पसंद है तो हम ये चीज लेके आएंगे, पर तुम जिसकी लेके आए हो वो चीज लाना गलत है। तुमने जो चीज कैसी, तुम गलत हो, मैंने जैसे पहले भी बोला था, उसको ये नहीं बोलना कि तुमने चोरी की है तुम गलत हो। ये नहीं नहीं, इनफैक्ट वी अप्रिशिएट हिम कि आपने बताया, खुद होके बताया। हाँ, बट देन अप्रिशिएशन शुड बी इन अ वे, आपने अप्रिशिएट किया बहुत अच्छा किया चोरी की, बट कैसे अप्रिशिएट करना है कि तुमने हमें बताया वो बहुत अच्छी चीज है, बट तुमने ये जो लेके आए वो गलत है। अगर तुम्हें चाहिए था तो तुम्हें हमें बोलना था, हम तुम्हें तुरंत ला के देते। और ये छोटी छोटी चीजें, सी साइंटिफिक चीजें अगर मैं बोलूँ, बीइंग अ पीडियाट्रिशियन नॉट एज अ पेरेंटिंग कोच या कुछ भी, देन ब्रेन जो हमारा होता है उसका जो वायरिंग होता है, तो अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं उनका कनेक्शन होता है। देयर आर मिलियंस लैक्स ऑफ न्यूरॉन्स कि जिसका कनेक्शन होता है। अब बच्चे ने एक बार ऐसा देखा ना कि मुझे जो चीज पसंद आई वो मैं चुरा के ले आया, तो वो वायरिंग बना। दूसरी बार उसने किया, वापस वायरिंग बना। पर अगर हमने उसको यहाँ पे वायरिंग को तोड़ा, वायरिंग को तोड़ा मतलब कि ये चीज जो तुम लेके आए
वो चीज अगर तुम्हें चाहिए थी तो तुम हमें बोल सकते थे, हम तुम्हें ला के देते, तुम्हें वो चोरी करके लाने की जरूरत नहीं थी। वो वायरिंग टूट गया कि मुझे चाहिए था, मेरे पेरेंट्स ने दिया। अगर मुझे चाहिए था, मैं किसी और तरह से अर्न करूंगा, लाऊंगा, तो वो वायरिंग हैबिट में कन्वर्ट नहीं होगी। तो हैबिट में कन्वर्ट नहीं होगी तो उसको प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए वो जितना जल्दी, जितनी छोटी एज पे, मतलब आई विश के मैं पेरेंट इस एज पे बना होता। मैं जब पेरेंट बना तब मेरा खुद का आई नो माई चाइल्ड्स लव लैंग्वेज इज क्वालिटी टाइम, बट देन आई वाज नॉट एबल टू गिव द क्वालिटी टाइम व्हेन दे वर यंग। बट अभी मैं दे रहा हूँ, अभी जो उसकी लव लैंग्वेज है मुझे समझ में आ रहा है तो मैं दे रहा हूँ। एंड हाउ आई जस्ट लिमिट माई वर्किंग आवर्स, जिससे मैंने बोला था कि मैं जो भी बोलूँगा वो पर्सनल उसमें ही बोलूँगा। एंड आई एक्सेप्ट माई फॉल्ट्स। और मैं इसलिए बोलता हूँ, आई हैव नॉट सीन अ सिंगल पेरेंट who is a perfect parent, and I've not seen a single parent who is actually not loving their children. True. So this is what is my today's message. Yeah, thank you. Amazing, amazing, really, Thank you, absolutely sir. true. Closing Yeah. line was absolutely true. हम लोग प्यार में गलती करते हैं बोल रहे हैं ना, बिल्कुल वैसा ही। I remember this story of 5 rupee. अभी जब आपने दोबारा रिपीट किया मुझे याद आया, सर मेरे नेव्यू ने भी ये गलती की थी, and he was about 6-year-old. So मुझे गुस्सा पहले आया, फिर मैंने पूछा ये दोबारा नहीं हो उसके लिए मैं क्या करूँ, वो how do I help you ये दोबारा रिपीट ना हो। तो he said, he very sweetly said, मेरे को रोज पैसे दे दो, ये दोबारा रिपीट नहीं होगा। So I said, वो तो पॉसिबल नहीं है कि रोज 5 रुपए आइसक्रीम के लिए मिलेगा, लेट्स कम टू सम अदर डील। So ये initially he said अच्छा नहीं होगा, but I could see that possibility है होने का। Then we had a deal कि हम एक day fix करेंगे जिसमें आपको ये पक्का मिलेगा, and हम consciously you will go and buy and come, something like that. So all of us I think find some ways out in that moment of trouble to find out what is the best method to help the child. All right. So I would like all of you to quickly type one takeaway of today's session. जल्दी से टाइप करिए ताकि हमें पता चले आज हमने क्या नया सीखा। सर हम ये सीरीज डिफरेंट एक्सपर्ट्स के साथ पिछले 1.5 महीने से कर रहे हैं, एंड as you know you're the 5th person, soon somebody else is coming, so I am on a mission to help all these educators, क्योंकि मेरा ये मानना है कि एक एजुकेटर के पास इतना पावर होता है किसी भी पेरेंट और किसी भी टीचर को इन्फ्लुएंस करने के लिए, तो उन्हें हम जितना दें या हम जितना सीखे उतना कम। So that's wonderful, sir. बहुत अच्छे lines आ रहे हैं। Be friends with children, love language, how to find love of your child, love language. आज का hit word is love language. Paste qualities of your child on wall, connect before correct. Very nice. All right, flashback our journey as parents. As you said, हमें वापस parent बनने का मन हो रहा है, ये सब सीखने के बाद छोटे बच्चे का parent हम फिर से बन चुके। Thank you so much for this wonderful session, sir. And we look forward कि हम दोबारा कभी ऐसे और plan करके और time बिता सके। Thank you so much and wish you all the best, sir. Thank you to all the members of my community and all those who joined, who are not members of this community and have joined for this session. Thank you to you too. Thank you, sir, and have a great weekend and wonderful movie time with your son, Yeah, thank you. with your family. Thank you. Bye-bye.